students. Yesterday we started our fifth chapter, The Summit Within, and in this chapter I told you about the author who is Mr. H.P.S. Ahluwalia, who was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. He climbed the Mount Everest on 29th May 1965 along with his friends Rawat and Fudorji. In the Indo-Pakistan War of 1965, he was injured and confined to a wheelchair. एचपीएस आहलूवालिया जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में, तो वो जो है उस वॉर में इंजर्ड हो गए थे और उसकी वजह से वो व्हील चेयर पर आ गए थे. ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स लाइक पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड एंड नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट वर्क डन इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी. He won the Tenzing Norgay National Adventure Award for Lifetime Achievement on August 29, 2009. He has written several books like Higher Than Everest, Beyond the Himalayas, and Everest is Within You. So these are the main books of HPS Ahluwalia, and in this chapter also he gave his personal experience when he climbed on the Everest and how was he feeling when he achieved this target. And in this story yesterday we came to know about Ahluwalia was full of humility. When he stood on the summit of Everest, he thanked God for his physical success. It was the highest of the goals for him. While getting down from the summit, he asked himself why he climbed Everest and what made him to do so. The people climb mountains because they present great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. A climb to a summit means the demonstration of climbers' endurance, persistence, and willpower. Since childhood, the narrator has been attracted by mountains. For him, mountains are nature at its best. They have a challenging beauty and majesty. They are a means of communion with God. Everest is the highest and the mightiest and has defied many previous attempts. On climbing its summit, what he feels, one has to sense of victory and of happiness. Its view brings a spiritual change in his mind. It poses a challenge before him which was difficult to resist. One feels connected with the supernatural elements on reaching the summit. One becomes conscious of his own smallness in this large universe. It provides physical, emotional, and spiritual fulfillment. Climbing a mountain is a highly risky job and needs others' help also. The fellow climbers prove to be a source of inspiration. And in this chapter, we read that here the author talks about other summit also, other peak also, which we can't achieve, which is most difficult to achieve. That is the summit which is within us. So when we achieve that summit which is within us, we can be the perfect man. No difficulty can harass us. Nobody can make us weak in our life. So I'm continuing our chapter from the point where we left it. I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. Now the author says that if someone asks me, why did I climb the mountain? Why did I choose to climb the mountains? Why did I choose to achieve the mountains? Target of the achieving mountains. So I will answer them. I will reply them that I had been attracted by mountains since my childhood.
कि मैं जब मेरे से कोई ये क्वेश्चन करेगा कि मैंने जो है माउंटेन की चढ़ाई क्यों की, मैं कहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली, तो मेरा आंसर क्या होगा इसके लिए कि मैं बचपन से जो है माउंटेन्स की तरफ अट्रैक्टेड था। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। मैं जो है कैसा फील करता था, बड़ा दयनीय, बड़ा गुमसुम सा। जब मैं इन माउंटेन्स से दूर चला जाता था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था बचपन में। इन द प्लेन एरियाज़ में माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन्स जो है नेचर का एक सबसे बेस्ट पार्ट है और एक तरह से पूरी प्रकृति इन्हीं के अंदर है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। Here, what the author says, their beauty, whose beauty, mountains beauty and majesty pose a great challenge। इनकी जो ब्यूटी है, इनका जो एक विस्तार है, इनका जो एक आकृति है, वो जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो है माउंटेन्स हमें जो है भगवान से संपर्क करवाने का एक जो है साधन है। और मेरा मानना भी यही है कि जब हम माउंटेन्स को देखते हैं और उनके ऊपर जो है जाते हैं तो क्या होता है, ये हमें भगवान से मिलाती हैं, हमें एक ऐसी फीलिंग दिलाती हैं कि हमने जो है कुछ अचीव कर लिया हो। सो इन दिस पैराग्राफ व्हाट वी केम टू नो, यहाँ तक जो है हमने क्या देखा कि जो HPS आहलूवालिया है उन्होंने हमें वेज बताए कि हम 3 अगर हमारे अंदर स्किल्स हैं, 3 हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। एक तो हमारी फ़िज़िकल एंड्योरेंस, हम फिज़िकली किस काम को जो है करने में सक्षम हैं, बहुत ज़्यादा धैर्यवान हैं, या फिर हम परसिस्टेंस, हमारे अंदर कितनी ज़्यादा टॉलरेंस है, सहनशीलता है, हमारी विल पावर कितनी अच्छी है। इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम अपने रास्ते में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से हैंडल करते हैं। और मेरे अंदर ये तीनों पॉइंट्स जो है बहुत थे और इसी वजह से जो है मैंने इनका प्रदर्शन किया और अच्छा रिस्पॉन्स मुझे इसके लिए मिला। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि कोई अगर जब भी कोई माउंटेन अचीवर होता है, कोई भी क्लाइंबर होता है, उससे क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपने जो है क्लाइंबिंग को ही क्यों चूज़ किया। अगर कोई मेरे से ये क्वेश्चन करता है तो मैं उसको क्या जो है जवाब दूँगा कि मैं बचपन से ही जो है माउंटेन्स की तरफ अट्रैक्टेड था और मुझे माउंटेन्स से दूर रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मैं प्लेन एरिया में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। और यहाँ पर वो एक पॉइंट और भी बताते हैं कि माउंटेन्स जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा नेचर का एक सबसे बड़ा पार्ट है, जो नेचर की सुंदरता को, इसके होने का, एग्जिस्ट करने का जो है एहसास दिलाती हैं। और दूसरा क्या है कि माउंटेन्स जो है भगवान से कम्युनिकेशन करने का, संपर्क करने का एक साधन है। Once having granted this, the question remains, why Everest? और एक बार जो है ये आंसर देने के बाद एक क्वेश्चन फिर से उठता है कि एवरेस्ट ही क्यों चूज़ किया। बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंची है, एंड द माइटिएस्ट, और सबसे शक्तिशाली भी है। माइटिएस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा विस्तार है इसका। एंड वॉज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और इसने जो है मेरे पुराने कई अटैम्प्ट्स में जो है मुझे रोका है, रेसिस्ट किया है, फ्रस्ट्रेट किया है, मुझे असफल किया है। सो मेरा ये चैलेंज था, इसके लिए मेरा एक मन बना रखा था मैंने कि मुझे जो है एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। इट टेक्स द लास्ट पाउंड्स ऑफ वंस एनर्जी। और जब हम कभी जब एवरेस्ट पर जाते हैं, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं, तो ये हमारी एनर्जी का एक आखिरी जो है बूंद, ऑन्स को भी जो है ख़त्म कर देता है। इट्स अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। और जब हम क्लाइंबिंग करते हैं, एवरेस्ट क्लाइंबिंग करते हैं, तो हमारा किसके साथ बड़ा संघर्ष होता है? चट्टानों और बर्फ़ के साथ। क्योंकि हमारी जो एवरी चोटी हैं, समिट्स हैं, ये जो है रॉक्स, और इनके ऊपर हमेशा आइस स्नोफॉल होता रहता है, जिसकी वजह से जो क्लाइंबर्स हैं उनको कौन सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, किसके साथ स्ट्रगल करना पड़ता है? रॉक्स और आइस के साथ। वंस टेकन अप इट कांट बी गिवन अप हाफ वे
even when one's life is at stake. अगर एक बार इसको शुरू किया जाए, अगर एक बार क्लाइंबिंग को शुरू कर दिया जाए, जो है अपने अंदर ये धारणा बना ली जाए कि मुझे यहाँ पर जाना ही है, इट कांट बी गिवन अप, हम इसको बीच में नहीं छोड़ सकते हो, हाफ वे में जो है नहीं छोड़ सकते. इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे भले हमारी ज़िंदगी जो है स्टेक पर हो. स्टेक मीन्स दांव पर, चाहे हमारी ज़िंदगी जो है इसके लिए दांव पर लग जाए. द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड. और पीछे मुड़ के जाना, यू टर्न लेना, पीछे मुड़ के वापस जो है नीचे जाना, उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जितना डिफ़िकल्ट आगे बढ़ना है. सो इफ़ वी स्टार्ट वंस क्लाइंबिंग, वी कांट मूव बैक इन हाफ वे, वी हैव टू बी ऑनवर्ड्स. So here the author tells that everybody who chooses this struggle, who chooses this adventure, face such type of difficulties with rock and ice, but he can't come back in the halfway. कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जब भी इस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, क्लाइंबिंग शुरू कर देता है, तो वो बीच से वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि पीछे मुड़ कर के आना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जितना कि ऊपर जाना डिफ़िकल्ट होता है. एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइंब्ड, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग. और एक बार जब इस चोटी को के ऊपर चढ़ जाते हैं या इसको अचीव कर लेते हैं, या हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, देयर इज़ एक्जिलरेशन. एक्जिलरेशन मीन्स एक रोमांचक फीलिंग हमारे अंदर आती है, द जॉय ऑफ हैविंग डन इन समथिंग. और हमारे अंदर एक ऐसी जो है जॉय, एक ऐसी हैप्पीनेस की फीलिंग आती है कि हमने जो है ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, कुछ करके दिखाया है. द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट इन वन, एक ऐसे युद्ध की सेंस आती है, फीलिंग आती है कि जिसको हमने लड़ा और उसमें हमें जीत मिली है. So after achieving the Everest, after achieving the highest peak, one can sense the feeling of happiness and victorious, because it seems like a battle which is fought by us, and after all it is won by us. एक ऐसा बैटल जो हमारे द्वारा लड़ा गया है और उसमें हमने जीत पाई है. There is a feeling of victory and happiness. यहाँ पर जो है जीत की और खुशी की एक फीलिंग हमारे अंदर आती है. ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. और जब इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद किसी एक दूसरी चोटी की तरफ जो है जो थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, उसकी तरफ जब मैंने झांका, उसकी तरफ जब मैंने देखा, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. और मैं जो है वहीं से फीलिंग क्या आती है मेरे अंदर, मैं मन ही मन जो है दूसरे संसार में ट्रांसपोर्ट अपने आप चला जाता हूँ. वो कैसे, मेरे अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें, बहुत सारी फीलिंग्स जो है मेरे अंदर आती हैं जब मैं दूसरी चोटी को देखता हूँ, थोड़े से डिस्टेंस पे जो चोटी है. आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और मुझे अपने आप में जो है एक बड़ा बदलाव नज़र आता है. वो बदलाव क्या है, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है. बाई इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. अब यहाँ पर जो है क्या बताया गया है, बाई इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता से. aloofness मीन्स इसकी ब्यूटी के साथ साथ जो है उसको और भी क्या दिखाई दिया, अलोफनेस मीन्स डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो शक्ति है, इसका जो खुरदरापन है साथ में. एंड द डिफ़िकल्टीज़ इनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो डिफ़िकल्टी, जो मुश्किलें उसको जो है रास्ते में फेस करनी पड़ी थी. द पीक ड्रॉज मी टू इट, और चोटी ने जो है जिन मुसीबतों में उसको डाला था, सो वो सब चीज़ें जो है ऊपर जाने के बाद उसको वन बाय वन याद आती हैं जब वो चोटी को, दूसरी चोटी को जो कि थोड़े से डिस्टेंस पे है, जब देखता है. क्योंकि एज़ यू ऑल नो, जो हमारी चोटियां हैं, जो समिट्स हैं, जो पहाड़ हैं, वो किसके बने हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा रग्ड हैं, बहुत ज़्यादा खुरदरे हैं और रॉकी हैं, एज़ यू ऑल नो.
और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और जिसके ऊपर जो है हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। इफ़ समवन वांट्स टू अचीव द सक्सेस इन क्लाइंबिंग देम, इन अप्रोचिंग देम, देन ही और शी शुड हैव टू फेस such type of difficulties on his way. So as the Everest did, जैसे एवरेस्ट ने मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए दिया था। इट्स अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, और एक ऐसा चैलेंज है जिसको जो है कोई रोक नहीं सकता, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। Nobody can't resist it. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, अपने पास्ट में देखता हूँ कि जब मैंने अचीव किया था इस गोल को, तो मैंने जो है इसको अचीव करने का एक एग्जैक्ट जो है पॉइंट नहीं बताया था, कि मैंने फुली एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं जो है एवरेस्ट की चढ़ाई मैंने क्यों की। मैंने जस्ट बाकी लोगों की तरह कहा कि मुझे जो है माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा हमेशा से सपना रहा है, लेकिन मैंने फुली एक्सप्लेन नहीं किया। पूर्ण जो है इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि मैंने इसको जो है क्यों अचीव किया, मैंने क्यों जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रेथ, और इसको आंसर करना जो है कौन से क्वेश्चन की तरह होगा। अगर हमसे कोई पूछे कि हम सांस क्यों लेते हैं, तो ये जो क्वेश्चन अगर मेरे से कोई पूछेगा कि मैंने क्लाइंब क्यों किया, मैं कैसे चढ़ा, इस चोटी पर क्यों चढ़ा, तो मेरे लिए इसी क्वेश्चन के जैसा है कि हम सांस क्यों लेते हैं। इसका भी कोई जवाब नहीं है एक पर्टिकुलर, और इसका जवाब देना भी मेरे लिए उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जितना हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी मेरे लिए जो है एवरेस्ट क्लाइंबिंग था। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, एक क्वेश्चन और भी है इसी के तरह, कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपने पड़ोसियों की सहायता क्यों करते हो, तो ये भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जिसको आंसर करना बहुत मुश्किल है। जैसे हम अपने पड़ोसियों की सहायता करना हमारे लिए ज़रूरी है, सांस लेना हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो सब क्या है, उसी तरह से जो है मेरे लिए क्लाइंबिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आंसर करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, जिनका जो है एरिया इतना वाइड है कि हम जो है इनको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और अगर मेरे से ये कोई क्वेश्चन करता है कि मैं एवरेस्ट की चढ़ाई मैंने क्यों की, तो मेरे लिए इतना ही मुश्किल रहेगा और इतना ही आसान भी रहेगा जैसे इन क्वेश्चंस को कोई आंसर करता है कि सांस लेना क्यों ज़रूरी, क्योंकि हम मर जाएंगे अगर सांस नहीं लेंगे। तो अगर मेरे से क्वेश्चन कोई करता है कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की, तो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है वैसा ही आंसर मेरा इसके लिए रहेगा। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसके लिए कोई फाइनल आंसर पॉसिबल हो ही नहीं सकता, हमारे पास बहुत से रीजन होते हैं। So, and then there is the fact that Everest is not just a physical climb. एक फैक्ट है यहाँ पर, एक सत्य है, वो क्या है कि एवरेस्ट एक फ़िज़िकल क्लाइंब ही नहीं है। हम फिज़िकली ही उस पर नहीं जाते हैं, चढ़ाई तो हम फिज़िकली ही करते हैं ना, लेकिन उसके साथ हम मेंटली भी जो है बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. यहाँ पर ऑथर क्या कहना चाहते हैं, if somebody goes to the mountains, if somebody goes to climb a mountain, if somebody achieves a mountain and goes to the top of it, he becomes conscious in a special manner. He can recognize his smallness in this large universe. अगर कोई व्यक्ति जो है इतनी ऊंचाई पर जाता है, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए जाता है, हर जो है कदम के साथ, हर बढ़ते कदम के साथ उसको एक नया चैलेंज जो है रास्ते में मिलता है, जो कि उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन वो उन सब को पार करते हुए जब ऊपर पहुंचता है तो उसके अंदर जो है बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं। उसको जो है इस बड़ी यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो है अपने छोटेपन का एहसास भी हो जाता है कि हम जो है इस ब्रह्मांड में कितने ज़्यादा छोटे हैं, हम अपने आप पर कितना गर्व, प्राउड फील करते हैं, घमंड महसूस करते हैं, बट एक्चुअली वी आर वेरी स्मॉल इन दिस लार्ज यूनिवर्स। हम बहुत ही छोटे हैं इस यूनिवर्स में, और फिर भी हम अपने आप को कैसा समझते हैं, बहुत ज़्यादा
अहंकार हमारे अंदर है कि हमसे जो है बड़ा कोई नहीं है, हमसे समझदार कोई नहीं है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। फिजिकली हम माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं शारीरिक तौर पर, तो वो एक अलग पार्ट है, ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट, हमारी प्राप्ति का एक छोटा सा पार्ट है। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट, इससे कहीं ज़्यादा कुछ और भी है जो हम अचीव करते हैं। वो क्या है? इट इज़ फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इससे हमारे अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है, इससे हमें आत्म संतुष्टि होती है। जब हम इतनी ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें एक आत्म संतुष्टि होती है, तृप्ति की जो है फीलिंग आती है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। यहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि है, ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग से, अपने माहौल से, अपने एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से अगर हम कुछ हटके कुछ बड़ा काम करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अपने आप में मिलती है कि हमने इस दुनिया में आकर के कोई एक ऐसा काम किया है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था करना, और जिसको हमने जो है बड़ी मेहनत के साथ पूरा करके दिखाया है। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और जब इंसान ऐसे कोई काम करता है, इफ़ ही और शी क्लाइम्स द माउंटेन्स, इट शोज़ हिज और हर इटर्नल लव फॉर एडवेंचर। एडवेंचर के लिए जो है इंसान के अंदर एक अलग ही एक कॉर्नर होता है, एक स्पेस होता है जिसमें जो है उसको एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उसको जो है लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और क्लाइंबिंग जैसा टास्क जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। लेकिन जो है उसको ऐसे टास्क लेने में, ऐसे काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ही और शी लव्स टू डू सच टाइप ऑफ एडवेंचर्स इन हिज और हर लाइफ। The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. So the author wants to clear here to prove that this experience is not merely physical, not only physical, it is related to our emotions and spiritualism also. ये हमारी इमोशंस से भी जुड़ा है, हमारी स्पिरिट से भी जुड़ा है, हमारी आत्मा की जो है संतुष्टि से भी जुड़ा है, हमारी इमोशंस से भी जुड़ा है। हम फिज़िकली ही ऊपर नहीं जाते हैं, हमारे अंदर जो है एक अंदर हमारे जो इस टारगेट को अचीव करने की एक लगन होती है, वो जो है उसके साथ सेटिस्फाई हो जाती है। सो अप टू नाउ व्हाट द ऑथर हैज़ टोल्ड अस दैट, अगर मेरे से कोई एक क्वेश्चन करता है कि मैंने माउंटेन क्लाइंबिंग क्यों की, तो मेरे लिए आंसर देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है। क्योंकि इसके लिए जैसे हमसे कोई पूछे कि हम सांस क्यों लेते हैं, पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं, हम अच्छे काम क्यों करते हैं, जिस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही मुश्किल है। क्योंकि इसके लिए कोई एक फ़ाइनल आंसर नहीं हो सकता है। और यहाँ पर पॉइंट जो ऑथर है वो क्या कहना चाहते हैं? ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो ये सिर्फ़ एक जो है हमारी फिजिकल पावर को ही नहीं दिखाता है। इससे हम क्या जो है महसूस करते हैं? हम अपने आप को टोटली चेंज्ड महसूस करते हैं, हमारे अंदर जो बहुत बड़ा बदलाव आता है। व्हाट इज़ दैट चेंज? वी फील आर स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। हम अपने छोटेपन का एहसास करते हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में, इतनी बड़ी विश्व में हम कितने छोटे से हैं। एंड देन ऑल्सो वी फील प्राउड ऑन अस। एंड देन द ऑथर सेज दैट एडवेंचर हैज़ ए ग्रेट इफ़ेक्ट इन अ मैंस लाइफ। एडवेंचर जो है इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है, करता है। क्योंकि जिस आदमी को जो है एडवेंचर पसंद है, वो प्रेम करता है ऐसी चीज़ों से जो कि लाइफ टेकिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे काम करता है। तो ये एक अलग ही जो है फीलिंग होती है जो कि हमारी इमोशंस से जुड़ी हुई थी, हमारी स्पिरिचुअल जो है जो अंदर एक एस्पेक्ट है उससे जोड़ी हुई होती है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑफ द लास्ट हाइट्स। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। अब जो है अगर हम यहाँ पर जो ऑथर है वो किस चीज़ के बारे में बताते हैं कि आप जब भी कभी क्लाइंबिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं रास्ते में?
टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, जब हम जो है चोटी की ओर जा रहे होते हैं, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, जब आप अपनी रस्सी को जो है दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर करते हैं, यू फॉर्म इन, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, देन ही बिलीव्स एंड यू इंश्योर योर वे अप। यहाँ पर वो क्या बताते हैं, कितनी ज़्यादा टिपिकल टास्क है ये क्लाइंबिंग का, कि एक व्यक्ति जो है ऊपर रस्सी को पकड़ करके आगे चलता हुआ रहता है और वो जो है चट्टानों को काटता है ताकि जो है हम अपने पैर वहाँ पर जमा सकें और उन पैरों को जो है जमा करके ऊपर की ओर अपना रास्ता चला सकें। तो वो क्या बताना चाहता है हमें यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि जब भी हम कभी भी क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो ऑथर ने हमें पहले भी बताया था कि एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है विद आइस एंड रॉक्स, और जो उसका फेलो क्लाइंबर होता है वो साथ में जो है उस आइस को, रॉक्स को जो है काटता चलता है पहले, और फिर वहाँ पर एक ऐसा स्पेस बना देता है ताकि हम अपने पैर वहाँ पर आसानी से जमा सकें और ऊपर की तरफ बढ़ सकें। और वो उसके बाद क्या करता है, बिलेज मीन्स फिक्सेस अ रोप ऑन दैट प्लेस, वहाँ पर जो है रस्सी को फिक्स करता है और उसमें जो है हम अपना पैर डाल कर पैर को रख करके जो है ऊपर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रिम, मीन्स बहुत ही ज़्यादा विकट, बहुत ही ज़्यादा दुष्कर, बहुत ही ज़्यादा फियर्स, हॉरिबल, फ्राइटफुल जो है हमारे लिए क्लाइंबिंग होती है। जितना लोग इसको आसान समझते हैं ये उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे ही आप जो है एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, हर कदम के साथ जो है आपकी जो नर्व्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, इट मीन्स तनाव, टेंशन, टाइटनेस। जब भी आप जो है कोई कदम आगे बढ़ाते हैं उस कदम के साथ जो है आपके अंदर एक तनाव पैदा होता है, एक टाइटनेस जो आपकी नर्व्स में आपको फील होती है। सो यहाँ पर जो है ऑथर हमें डिफ़िकल्टीज़ से जो है रूबरू करवा रहे हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ से मिला रहे हैं हमें जो कि क्लाइंबिंग के दौरान उनको फेस करनी पड़ती हैं। नाउ व्हाट द ऑथर सेज, एंड यू फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। बहुत सारे जो फेमस क्लाइंबर्स हैं जिनके नाम जो है हमें सुनने में आते हैं, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना रखे हैं ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, और उन रिकॉर्ड्स में उन्होंने क्या बताया है कि उनको जो है किस व्यक्ति से किस तरह की हेल्प रास्ते में मिली। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है कि उनको उस सहायता की ज़रूरत कैसे पड़ी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, तो भी जो है उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को उन्होंने फेस किया, तब भी जो है उन्होंने इस रास्ते को छोड़ा नहीं। ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप साइंस पढ़ते हो, आप एसएसटी पढ़ते हो, तो आप ज्योग्राफी में देखते हो कि जैसे जैसे हम जो है ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब, जो एयर स्पेस है वो, एयर प्रेशर है वो कम होता चला जाता है और ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो जैसे जैसे क्लाइंबिंग करते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो सांस लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और आप कई बार अपने आप को कोसना शुरू कर देते हो कि मैंने यही काम क्यों चूज़ किया, यही टास्क जो है अपने लिए क्यों चूज़ किया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, और आप जो है हैरान हो जाते हो कि आपने कभी भी जो है किस चीज़ को नहीं लिया, कि आप जो है इसी रास्ते पर आगे क्यों बढ़े, अपने आप को इसी रास्ते पर क्यों चलाया, एसेंट मीन्स क्लाइंबिंग को ही क्यों चूज़ किया। आप जो है अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं जब इतनी डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आपको फेस करने के लिए मिलती हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। इट वुड बी श्योर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, और फिर आप ये भी महसूस करते हैं कि जो है ऊपर जाने के बजाय जो है नीचे जाना हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स देगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूव, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल।
और जब कभी आप जो है ऐसा मूड बना लेते हैं कि मुझे जो है नीचे जाना चाहिए, मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ आपके अंदर ऐसी होती है जो आपको वापस नहीं मुड़ने देती, जो आपको गिव अप नहीं करने देती है, इस चीज़ को जो है छोड़ने नहीं देती है कि आप जो है इस रास्ते से वापस जाओ। वो आपको जो है इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है आगे जाने के लिए कि हमें जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, हमें जो है इन डिफ़िकल्टीज से डर के नहीं भागना है, स्ट्रगल को जो है कंप्लीट करना है और इसके ऊपर विन ओवर करना है। सो द ऑथर टेल्स अस द टिपिकल climbing here, about the typical climbing, about the struggle which he or anybody else does when he or she goes for climbing, and they face many difficulties on their way. They should have to cut the ice and rocks for their each and every step to move forward, but and somebody all the climbers curse themselves when they feel such type of struggle in their life, and they face such type of difficulties in their life, and sometimes they make their mind to go back, but something is there in us, in them, that does not let them to give up for the struggle, जो उनको जो है ये स्ट्रगल करने से पीछे नहीं हटने देती, जो उनको जो है आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। एंड यू गो ऑन, और आप जो है आगे बढ़ते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपके जो कंपेनियंस हैं, जो आपके फेलो क्लाइंबर्स हैं, वो भी जो है आपके साथ चलते रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, और वो क्या बोलते हैं, बस 50 फीट ही बचा है, और 100 में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो 100 हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड, और कभी तो आप जो है अपने आप से पूछना शुरू कर देते हैं कि जो है क्या इस चोटी का कोई अंत नहीं है, क्या हमें ऐसे ही चलते जाना है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप जो है अपने सदस्य, जो फेलो क्लाइंबर्स हैं, जो साथ में चढ़ने वाले हैं, उनकी तरफ देखते हो, और वो कभी कभी आपकी तरफ देखते हैं कि क्या कभी एंड आएगा इसका। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से आप इंस्पिरेशन लेते हैं कि ये भी चल रहा है तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और तभी जो है आप बिना इसके अवेयर हुए ही, एक दूसरे की तरफ ऐसे देखते ही, इंस्पायर होते होते जो है चोटी पर पहुंच जाते हैं एकदम से। सो अप टू नाउ वी came to know about the struggle, we came to know about the difficulty which were faced by the author and his fellow climbers during this Everest goal, and many other his feelings are shared by the author HPS Ahluwalia. So we came to know about his difficulties and his 3 powers which he used, 3 skills which he used to go through this struggle. So we will continue it from here tomorrow. Thank you.